कहावत भी थी ना हिंदुस्तान में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। तो लग रहा है कि वो कहावत बदल रही है। We are here at Jaipur Polo Ground in New Delhi, which is witnessing another edition of Habano's Cavalry Gold Cup presented by Chingari, and along with me is the president Mr. Chetan Seth. Chetan ji, welcome to India TV. इससे पहले मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूं, सबसे पहले मैं कोट दर्शकों को बताना चाहूँगी। John C. Maxwell once rightly quoted that motivation will take you to places, motivation will help you grow, but consistency and discipline will help you grow. तो ये जो कंसिस्टेंसी का लॉ है ये आपने अपने अंदर उतार लिया है. हाउ आर यू सो कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग दैट यू डू? It's not only consistency, it's a passion. I think that my passion to elevate not only with polo and horse riding, but all the sports. You will see now in the next year or so, we are also going to get activated in the sports of shooting, in the sport of golf. So जितना भी हम कमाते हैं ना, तो हम ये सब वापस देने के लिए हमारी जो youth है, they have got so much possibilities. Sometimes they don't have the facilities or they don't know. So thanks to India TV and your full coverage, we actually get people to see what polo is about. And we hope that will attract more people into the game. Absolutely. Not only polo, लेकिन हमने अभी आपने जिक्र किया शूटिंग का, अभी आपने जिक्र किया गोल्फ का, तो we should not forget our star players who have represented India on national international platforms. और शूटिंग में तो हमें सबसे ज़्यादा मेडल भी आते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन होगा, उन लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होगा, because these sports are expensive sports. See, it's not India may, if I may say so on television, that we are a very disorganized country. If you play cricket and want to build a cricket team, you need about 500,000 people playing to get 11 people on the top. Absolutely. But we are very good as individuals. So every individual sport, of course horse riding not so much, but you can do equestrian, jumping and all that. You do shooting individual. We are number one in the world in chess, number one in the world in billiards. We are so anywhere with individual shooting, you can be individual, you don't need a team as such. So I think those sports, we should be number one in the world in any case. I hope the other sport will also happen. But this sport, we can invest in individual people with talent and take them forward. And coming back to your passion, how did horse polo happen? See, with me, of course, it started off because of our lifestyle brand, which is Chingari. Polo was really, it's the game of kings. It is it's of royalty. But now we are trying to bring it down to the people. If you go to Jaipur, which is where a lot of polo is played, and you go on an event, there is a rickshaw wala standing outside to watch. उससे पूछ सकते हैं कि कौन टीम विन कर रही है, सब पता है कितना गोल है, क्या है, सब पता है. Like we go to Bihar and talk of politics and politicians, the chai wala also knows. So is polo in Rajasthan, Jaipur. But as I told you before, that polo actually originated from Manipur. Absolutely. And I think some little captain or something of the British Army took it and brought it and then made it the game of all the Maharajas. And then when the British left, they took it and it became their game. So one of my strong objectives is to bring the game back and tell the world it is actually an Indian game and for India to play. I think the second thing I must say is that the game of polo is really promoted because of the Indian Army. अगर इंडियन आर्मी नहीं करती, इतना पैसा नहीं खर्च करती और 60 was cavalry, ये गेम यहाँ पे मर जाता. और today, as you will see, the chief army staff is our chief guest. Always the chief, or they always come consent to be here to give support to the game, to give support to everybody. We really appreciate that. And to motivate people like you who not only work for the game but also for the welfare of the people around, and also how a common man or a common person can be associated with the game. I think the game is, all these games are available to everyone. Even cricket, I will say, I was talking to one of the players on the recent match. He said, देखो चेतन, जो 11 लोग on this team which has recently we won and all that, 8 or 9 of them come from such simple backgrounds. It's unbelievable. I mean, somebody's father was a peon, somebody's father was a driver, I think that opportunity which India is giving, जो हम लोग बोलते थे हम अमेरिका जा रहे हैं, the place of country of opportunities. I think India is now becoming a country of opportunities for everything.
वो एक कहावत भी थी ना हिंदुस्तान में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे ख़राब। तो लग रहा है कि वो कहावत बदल रही है। सो द टाइम्स आर चेंजिंग एंड जो भी एक और चीज़ बड़ी देखने को मिलती थी कि पहले जब खिलाड़ी अपना प्रदर्शन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अच्छा करके दिखा लेता था तब उसे लोग सपोर्ट करने आते थे, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग देम थ्रू आउट देयर जर्नी। वो जो बेसिक स्टार्ट होता है, जो स्ट्रगल होता है, उसमें सपोर्ट करेंगे, देन मे बी दे कैन अचीव मोर लॉरेल्स फॉर द कंट्री। That is true, and I hope it is changing. But like everything else, I think India, I work in manufacturing of high-tech products. I always say I make in India for India and the world. The globe has become a much smaller place, and with connectivity and all the technology available, I think that anything we do, we should benchmark ourselves to the best in the world. We start in India, best in the world, best polo, best whatever it is. So that recognition also helps, of course. That is always a good thing. And apart from today's finale match, who will be competing against each other, or who are you eyeing for? No, I can't as a sponsor eye for anybody. There's Jindal. Is there like any personal favorite? Well, Naveen is a friend of mine, so Jindal is always my favorite. But the Achievers, of course, the best team will win. And that is, again, the game of polo. That both can, whoever's the best will win. That's So any message you would like to give through us to both the teams? I think the first message is be safe. Absolutely. Because I find that people don't realize that the game of polo is really, it is a little bit of a dangerous game. People fall off horses all the time. After spending, I think, many crores of rupees in sponsoring the sport, I asked the commandant of the 61st Cavalry one day, I said that I want to learn to ride. He said, no sir, you can't. I was about to ask you the same. He said, no, you can't. I said, तुम पागल हो, इतना पैसा तुम्हारे पे खर्च करते थे. He said, no sir, you're too old to learn how to fall. Absolutely. That is important. I'm sorry, but in every game, especially when we do different asanas of yoga, the teacher teaches their student when they do hard asanas or inversions, you should know how to get into the asana, but more important, you should know how to fall from the asana, because जाने में वक्त लगेगा, गिरना तो ज़्यादा है ना, तो गिरना भी आना चाहिए. That is true. And in in the sport of polo, you can have accidents, the horse can fall on you. Absolutely. I know quite a few people, I know cases where people have died, of course. I know cases where people have paralyzed themselves. So it's a dangerous sport. I mean, I feel very, my grandchildren want to ride. I said, I think thoda let's think about it, shooting karo. Sir, horse riding का चेतन जी तो मुझे पता नहीं, I am no technical expert in that. But एक चीज़ जो मैंने बार बार आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके, पोलो मैच के दौरान आपको ऑब्जर्व करके जो रियलाइज़ किया is you still are very young at heart. What is the reason? I'm not going to comment on television why I'm young at heart. But, but Milkha Singh also said ना कि दिल से बच्चा होना, दिल से जवान होना ज़रूरी है. आपको you don't feel of your age. I have to say, and I'm quite happy to say this proudly, that I'm 72 years of age. And everybody says that you are 65. Enthusiasm वही है. Enthusiasm वही है. I am fit. I think yoga is my best exercise. I think I've got a couple of rules I tell the whole world, that the biggest killer is stress, and stress is in your head, so you must meditate to take the stress away. Yoga for exercise, and you're all right. There's no problem. Thank you so much. It was again lovely talking to you, and I wish we keep meeting again and again for many, many years. Thank you very much. Thank you so much. आज का जो फिनाले मैच आप देखेंगे वो ऑप्टिमस अचीवर्स और जिंदल पैंथर्स के बीच होगा. दोनों खेमे में तैयारियां पुख्ता चल रही हैं क्योंकि अभी मैच शुरू हुआ नहीं है. और इस वक्त हमारे साथ ऑप्टिमस अचीवर्स के हूर अली हैं. हूर, वेलकम टू इंडिया टीवी. यू लुक वेरी शार्प, लेकिन क्या गेम में वो शार्प स्किल्स नजर आएंगे? Thank you so much for having me. And जैसे कि आज का गेम बहुत अच्छा होने वाला है because we play against one of the biggest setup in the country, Jindal Panthers and Achievers team. These are one of the biggest setups in the country. So आज के गेम के लिए हम अच्छा देख रहे हैं forward क्योंकि we have a very good team. I'm playing with my father, Daniel Uttamandi, and we got Uday Singh from artillery. So we're looking forward for a good game and let's see what happens. I think the day is also in the favor of the game. It's shining bright, sunny, और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है. तो I think
it's also going to keep up with you guys, but कोई strategy है? Like I said, like we came here and it's a lovely weather today, especially in Delhi. Watching the sun and a clear sky, it's a blessing. And we have a simple strategy. We had a good coordination. Last 2 games we did well, very well, and we're just going to follow the momentum. And we had a good chat before the game. We play simple. We try to hit the ball as much as we can and just keep it over there, and we'll play simple. That's the strategy we go. If I talk of the opponent team, Jindal Panthers, last time they made it to finals, although they did not win the game. But कोई ऐसा specific चीज़ जो आपको लगता है कि इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा अगर हम जिंदल पैंथर्स के खिलाफ खेल रहे हैं? ऐसा नहीं है, winning and losing it's part of game. And Jindal has been a major setup in India for more than a decade now. More than 2 decades, I would say. Jindal Panthers. So मैं भी खेला हूँ, वो last time मैं भी खेला जिंदल के साथ, and it was bad luck. जैसे 2 game वो लोग खेले, they lost it in the end. So I think they are more fired up because they didn't get the win this season, and we had I think we won 4 tournaments. You played for them last year, so is that an advantage for your team this year? I would not say that. I enjoy playing both the sides because both are lovely setups, and I like to play with Naveen sir, Simran Bhaiya, and Siddhant Bhaiya, and this side also. And this time it's my first time playing with my father in Delhi. I never played with my father in Delhi, so it's my first time playing with him. So I'm quite excited for today, and we got lovely weather, good sponsors, and the stand is full. So we look. Stands full, और sponsors पिछली बार से at least ज़्यादा हैं, तो recognition game को ज़्यादा मिल रहा है. But one more thing, कोई message जो आप opponent team को देना चाहेंगे before the game starts? Good luck. Thank you so much. Thank you. जिंदल पैंथर्स ने एक बार फिर से फाइनल में जगह बनाई है और इस वक्त नवीन जी हमारे साथ हैं. सर, वेलकम टू इंडिया टीवी. थैंक यू जोस्ना. आई नो टाइम इज़ ऑफ एसेंस, यू गेटिंग रेडी, फिर आपने वार्म अप भी करना है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इसके आज वाले फाइनल में? स्ट्रैटेजी कि हम उनसे ज़्यादा गोल करें, बॉल लें और बॉल को जो है छोड़े नहीं और फिर उनके गोल में डाल के ही दम लें. तो स्ट्रैटेजी तो ये है, और लेकिन अगले भी खेलने के लिए आए हैं, जीतने के लिए आए हैं, तो इसलिए ये काफ़ी रोमांचक मुकाबला होगा. और जो भी जो 2 बेहतरीन टीमें थी वही फाइनल में पहुंची हैं, और किसी का कोई भी जीत सकता है. जो हमारे कंपटीशन है वो भी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जीतने की. लेकिन अभी तक इस सीज़न में हम लोग एक भी टूर्नामेंट जीते नहीं हैं, तो इसलिए हमारा पूरा प्रयास होगा जीतने का. पूरा प्रयास होगा और जीतेंगे तो विनर बनकर साबित होंगे. लेकिन हूर लास्ट ईयर आप जब फाइनल्स में पहुंचे थे आपकी टीम में थे, लेकिन इस बार हूर जो है विरोधियों के टीम में है. एक प्रोफेशनल प्लेयर है, तो पिछली बार वो हमारे लिए खेल रहा था, इस बार वो उनके लिए खेल रहा है. तो आपकी स्ट्रैटेजीज वहाँ लीक तो नहीं हो जाएंगी? नहीं, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि ये बहुत वैसे सिंपल गेम है कि आप घोड़े के ऊपर हॉकी खेल रहे हैं, तो इसलिए कोई इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. लेकिन ये कि ग्राउंड के ऊपर बॉल कई बार बहुत उछलती है, उछलती हुई बॉल को मारना, कंट्रोल, इतनी स्पीड के अंदर बॉल को कंट्रोल करना. लेकिन एक माइंडसेट तो समझ आता है ना कि किस प्लेयर का क्या माइंडसेट होगा, तो आपको लगता है वहाँ इस तरह का कोई एडवांटेज है? वैसे उन्होंने आपको गुड लक बोला? नहीं, हम भी उनको गुड लक देते हैं, और वो भी सभी अच्छे खिलाड़ी हैं. और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि बाप और बेटा दोनों इकट्ठा खेलेंगे, और क्योंकि शमशीर अली भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उनके बेटे हूर भी, तो इसलिए दोनों को देखना भी मुझे लगता है दर्शकों को बहुत मज़ा आएगा. और हमारी टीम में भी जो हमारे 6 गोल प्लेयर हैं, ग्रॉसी, हुआन ऑगस्टीन ग्रॉसी, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. सिमरन शेरगिल, अर्जुन अवार्डी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. और फिर महेश शर्मा और मैं हैं, तो इसलिए हम भी आराम से अपना खेलेंगे, और फिर खेलने के साथ साथ ठीक ठाक वापस आ जाएं. ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि घोड़ों को चोट ना लगे, प्लेयर्स को किसी को चोट ना लगे. ये किस तरह एक खेल है. ये इंडिया टीवी की ना ऑडियंस ये जानना चाह रही है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड योर दिस फिट बॉडी. आप जितना अपने एक्सपीरियंस के साथ एज कर रहे हैं, उतना ही आप अपनी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर रहे हैं. तो देखिए, पोलो खेलने के लिए बहुत फिट रहना पड़ता है, क्योंकि घोड़ा कोई लिहाज नहीं करता कि भाई चेयरमैन साहब बैठे हैं या MP साहब बैठे हैं, इसको कोई लिहाज नहीं है. इसको सिर्फ लिहाज है एक अच्छे घुड़सवार का. तो उसके लिए बहुत फिट रहना, और ना ही आपकी कंपटीशन आप देखेंगे खेल के अंदर बहुत तेज़ घोड़े भगाने पड़ते हैं, आपस में साइड से टकराते भी हैं. तो इसलिए फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, और खेलता रहता हूँ तो मैं फ़िट रहता हूँ.
तो इसलिए पोलो ने मुझे बहुत कुछ दिया है और पोलो के कारण ही मेरी फिटनेस। लास्ट सवाल, पोलो ने आपको बहुत कुछ ज़रूर दिया है, लेकिन जो आप पोलो के ज़रिए लोगों को दे रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। मैं देख रही हूँ कि पिछले बार से ज़्यादा स्पॉन्सर्स इस बार आ रहे हैं और सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर का तमगा है वो आपके नाम का है। ये हमें बहुत, ये पोलो भारत का गिफ्ट है वर्ल्ड के लिए, और इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि पोलो को हम बढ़ावा दें। पोलो भारत के अंदर शुरू हुआ और भारत के अंदर आज हमारा लेवल वर्ल्ड में बहुत नीचे है, तो इसको हमें उठाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। We have नवीन जी of जिंदल पैंथर्स with us. many congratulations. जो आपने गोल निर्धारित किया था वो तो हुआ, गोल तो बहुत सारे हुए। हाँ जी, गोल तो हुए और अंत में दूसरी टीम बहुत अच्छा खेली और एक गोल से एक्स्ट्रा टाइम में सडन डेथ में जीती हमसे। लेकिन जो गेम स्पिरिट की बात होती है वो ज़रूर देखने को मिला। दोनों ही टीमों की तरफ से बड़ा कड़ा मुकाबला था एंड वी सॉ सम गुड गोल्स इन दी फोर्थ चक्रा फ्रॉम योर टीम। वो एनर्जी कहाँ से आई? सो हम लोग पीछे चल रहे थे 5-3 से, हम 2 गोल से पीछे चल रहे थे। फिर चौथे चक्कर में हमने लास्ट चक्कर के अंदर हमने 2 गोल किए, फिर 1 गोल आगे किया, तो 3 गोल करके हम लीड में आ गए। फिर उन्होंने 1 गोल किया, शमशीर अली ने बहुत दूर से एक बहुत ही बेहतरीन गोल किया जब सिर्फ 7-8 सेकंड बचे थे, तो वो बहुत ही एक फिनोमिनल गोल था, उससे वो बराबर हुए। और उसके बाद फिर जब एक्स्ट्रा चक्कर के अंदर, फिर 5वें चक्कर में चला गया एक्स्ट्रा टाइम के अंदर, और फिर एक फाउल, मुझसे एक फाउल हुआ और फाउल से जो है उनको एक पेनल्टी शॉट मिली और उन्होंने वो कन्वर्ट कर दी। लेकिन ये बहुत अच्छा गेम था। मैं समझता हूँ कि दर्शकों ने इसको बहुत एंजॉय किया होगा और मैं ये मानता हूँ कि पोलो से ठीक ठाक आ जाएं, सब घोड़े किसी को चोट ना लगे, किसी खिलाड़ी को चोट ना लगे। आपने देखा कि एक घोड़ा भी गिरा था। हाउस द हॉर्स? हाँ ठीक है जी, घोड़ा ठीक है बिल्कुल। तो इसलिए सब कुछ ठीक ठाक आ जाए तो वो एक उसमें बहुत बड़ी जीत है। जिंदल जी, मैं जिन लोगों से हॉर्स पोलो की बात करती हूँ, स्पेशली व्हेन आई कम टू कवर द इवेंट, एवरीबडी टॉक्स अबाउट द हॉर्स पोलो और हॉर्स पोलो की शुरुआत कैसे हुई। ऑल्सो दे टॉक अबाउट योर एसोसिएशन विद पोलो एंड वॉट एवर यू हैव डन टू प्रमोट स्पेशली हॉर्स पोलो हियर इन इंडिया। सो पोलो, आई हैव ऑलवेज लव्ड पोलो और मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ और मुझे खेल के मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके कारण मैं अपने आप को फिट भी रखता हूँ। इससे हिम्मत भी मिलती है, आदमी को टीम स्पिरिट भी मिलती है, अनुशासित भी रहना पड़ता है। तो इसलिए पोलो ने मुझे बहुत कुछ मुझे दिया है, मुझे बहुत दोस्त दिए हैं। पूरी दुनिया में आदमी के दोस्त बनते हैं और एक हिम्मत मिलती है और एक ये भी सिखाता है कि घोड़ा किसी का लिहाज नहीं करता। तो अगर आपको घुड़सवारी करनी है तो घोड़ा कोई लिहाज नहीं करता कि मेरा मालिक बैठा है या कोई बड़ा आदमी बैठा है। घोड़ा सिर्फ लिहाज करता है एक अच्छे घुड़सवार का। तो इसके लिए निरंतर अभ्यास करना, अपने आप को फिट रखना बहुत आवश्यक है। देखिए, सर ने बता दिया कि एक अच्छा घुड़सवार बनने के लिए किन किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। एक बहुत राइजिंग क्वेश्चन है, बिकॉज हॉर्स पोलो इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। अगर मैं जयपुर की बात करूं तो वहां देखने को मिलता है कि स्पॉन्सर्स बहुत कम हो गए हैं, बट दैट इज़ समथिंग दैट वी आर नॉट सीइंग हियर। लेकिन इस गेम को और प्रमोट करने के लिए, कॉमन मासेस तक पहुँचाने के लिए आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता है? बिकॉज एक्सपेंस तो कम नहीं किया जा सकता। देखिए, बहुत से लोग इंडिया में पोलो देखना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो पहली बार पोलो देखने के लिए आते हैं वो बहुत हैरान होते हैं कि इतना अच्छा गेम है, हमने आज तक हमें पता ही नहीं था। तो इसमें मैं कहूँगा कि हमारी इसके अंदर मार्केटिंग की कमी है। हम इसके लिए प्रचार करें, लोग बाग आएँ, देखने के लिए आएँ। तो देखिए, कोई हम टिकट भी चार्ज नहीं करते किसी को, हम किसी को कोई टिकट चार्ज नहीं करते। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होता है। दिल्ली के हाट के अंदर, दिल्ली रेस कोर्स के अंदर जयपुर पोलो ग्राउंड है, यहाँ पर पोलो होती है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं कहूँगा कि आप लोग पोलो देखने के लिए आएँ और आप आएंगे तो आप इसका आनंद उठाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पोलो भारत की देन है विश्व को, और इसलिए आज हमें अपने स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं, आर्मी अपना प्रयास कर रही है और मैं समझता हूँ धीरे धीरे पोलो आगे बढ़ेगा क्योंकि पोलो के अंदर एक बहुत क्षमता है, पोटेंशियल है और पोलो आगे बढ़ रहा है। देखिए, भारत से ये गेम की शुरुआत हुई और फिर विदेशियों ने इसे अपना बना लिया। घर वापसी की तैयारी हो रही है और बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है और इस मैदान में आप जितने दर्शकों को देख रहे हैं ना, वो ये इशारा देते हैं कि घर वापसी हो रही है, हमारा गेम है, हमारे देश में आ रहा है। बिल्कुल।